আজিৰ দিনটোত ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰিছে এটা ডাঙৰ মন্তব্য। ৰাহুল গান্ধীয়ে কোনোপধ্যেই নাযায় ৰাম মন্দিৰলৈ। সাংবাদিকে ৰাহুল গান্ধীক আজি সুধিছিল 22 জানুৱাৰীৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছত ৰাহুল গান্ধী ৰাম মন্দিৰলৈ যাবনে নাই, কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ হাতত নাই উত্তৰ। সাংবাদিকক আওপকীয়াকৈহে উত্তৰ দিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আমি জনাইছো বিশেষ খবৰ ৰাম মন্দিৰক লৈ আজিৰ দিনটোত বৃহৎ মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী। যেহেতু ৰাম মন্দিৰত কংগ্ৰেছ উপস্থিত নোহোৱাক লৈ সমগ্ৰ দেশতে সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ আৰু ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাত কোনোপধ্যেই উপস্থিত নহয় কংগ্ৰেছ বুলি মন্তব্য কৰিছে। 22 জানুৱাৰীৰ পাছতো ৰাম মন্দিৰলৈ হয়তো নাযায় ৰাহুল গান্ধী আৰু সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ কোনো উত্তৰ নাই ৰাহুল গান্ধীৰ হাতত। ৰাম মন্দিৰলৈ ৰাহুল গান্ধী 22 জানুৱাৰীৰ পাছত যাবনে নাই সেই বুলি সাংবাদিকে সুধিছিল প্ৰশ্ন। 22 জানুৱাৰীৰ অনুষ্ঠানক সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অনুষ্ঠান আখ্যা দিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। 22 জানুৱাৰীৰ পাছত ৰাম মন্দিৰলৈ যাবনে নাই বুলি ৰাহুল গান্ধীক সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল, কিন্তু সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ কোনো গুৰুত্ব নিদিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আমি জনাইছো বিশেষ খবৰ ৰাম মন্দিৰক লৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে আন এক মন্তব্য কৰিছে। ন্যায় যাত্ৰাৰ দ্বাৰা বিজেপিৰ আচল স্বৰূপ জনতাৰ সন্মুখলৈ আনিম বুলি মন্তব্য কৰিছে, যাৰ বাবে পুনৰ ন্যায় যাত্ৰা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে। বিজেপিৰ মডেলক সম্পূৰ্ণ হিংসা আৰু ঘৃণা বিয়পাৰ মডেল আখ্যা দিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। বিজেপিৰ মডেলত দেশৰ উদ্যোগপতিসকলেহে দেশৰ সমগ্ৰ ধন লাভ কৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে। বিজেপিক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে। বিজেপি আৰএছএছে নিৰ্বাচিত কৰা কেইজনমান লোককহে গুৰুত্ব দিয়ে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। নাগালেণ্ডত ৰাম মন্দিৰলৈ কংগ্ৰেছ নোযোৱাৰ কাৰণ ৰাহুল গান্ধীয়ে ব্যাখ্যা কৰিছে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ কোনোপধ্যেই কংগ্ৰেছ নাযায় বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে মন্তব্য কৰিছে। ইয়াৰ লগতে 22 জানুৱাৰীৰ পাছতো হয়তো কংগ্ৰেছ তথা ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাম মন্দিৰত উপস্থিত নহব তাৰেই এক ইংগিত প্ৰদান কৰিছে আজিৰ দিনটোত ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু আজি নাগালেণ্ডত যিহেতু ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হৈছিল, নাগালেণ্ডত উপস্থিত হৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছে, বিজেপিক সমালোচনা কৰিছে, বিজেপি হিংসা বিয়পাৰ ৰাজনীতি কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু যিহেতু কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা সফল হৈছে বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে দাবী কৰিছে, যাৰ বাবে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ নতুন ৰূপ হ'ব ন্যায় যাত্ৰা আৰু এই ন্যায় যাত্ৰাৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মাজলৈ বিজেপিৰ আচল স্বৰূপ কংগ্ৰেছে লৈ যাব বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে দাবী কৰিছে। এই মুহূৰ্তত ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। राहुल जी, क्या 22 तारीख के बाद आप जाएंगे राम मंदिर में दर्शन के लिए? तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ यह कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into an election function. जो बीजेपी का जो मॉडल है, जो नफरत भरा हिंसा का मॉडल है, वो अन्याय का मॉडल भी है। उसमें 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देश का पूरा धन मिल जाता है। जो ब्रॉड हमारी कम्युनिटीज हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। मैंने उदाहरण दिया, 90 अफसरों का मैंने उदाहरण दिया और पूरे देश में इस बात को एक्सेप्ट की गई कि हिंदुस्तान की सरकार को जो ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो चलाती नहीं है। तो ये इश्यूज उठाई जाएंगी, बट मेन चीज हम रखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश में अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के बीच में और नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है। अन्याय से नफरत बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है और बीजेपी आरएसएस का लक्ष्य एक्चुअली चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा, पूरा धन पकड़ाने का है।
আৰু আপোনালোকে মন্তব্য শুনিলে ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে। লগতে কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতৃত্ব উপস্থিত নহয় বুলি ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাইছে। আৰু তাৰ পাছত আজি নাগালেণ্ডৰ উপস্থিত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত পুনৰবাৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। 22 জানুৱাৰীৰ পাছতো ৰাম মন্দিৰলৈ হয়তো ৰাহুল গান্ধী নাযায়, কিয়নো সাংবাদিকে আজি প্ৰশ্ন কৰিছিল। সেই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল ৰাহুল গান্ধীয়ে। 22 জানুৱাৰীৰ অনুষ্ঠানক সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অনুষ্ঠান আখ্যা দিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। 22 জানুৱাৰীৰ পাছত ৰাম মন্দিৰলৈ যাবনে নাই বুলি সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল, কিন্তু সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ কোনো ধৰণৰ পোনপটীয়া উত্তৰ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল ৰাহুল গান্ধীক। ন্যায়যাত্ৰাৰ দ্বাৰা বিজেপিৰ আচল স্বৰূপ ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে জনতাৰ সন্মুখলৈ আনিম বুলি। বিজেপিৰ মডেলক সম্পূৰ্ণ হিংসা আৰু ঘৃণা বিয়পা মডেল ৰাহুল গান্ধীয়ে আখ্যা দিছে। বিজেপিৰ মডেলত দেশৰ উদ্যোগপতিয়েহে দেশৰ সমগ্ৰ ধন লাভ কৰে বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে অভিযোগ আনিছে। আৰু বিজেপি আৰএছএছে নিৰ্বাচিত কৰা কেইজনমান লোককহে গুৰুত্ব দিয়ে বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে অভিযোগ তুলিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে। আৰু নাগালেণ্ডৰ ৰাম মন্দিৰলৈ কংগ্ৰেছ নোযোৱাৰ কাৰণ ৰাহুল গান্ধীয়ে ব্যাখ্যা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত ৰাহুল গান্ধীৰ যি মন্তব্য, সেই মন্তব্য প্ৰথমৰ পৰা আগবঢ়াইছো। राहुल जी, क्या 22 तारीख के बाद आप जाएंगे राम मंदिर में दर्शन के लिए? तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into a election function. जो बीजेपी का जो मॉडल है, जो नफरत भरा हिंसा का मॉडल है, वो अन्याय का मॉडल भी है। उसमें 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देश का पूरा धन मिल जाता है। जो ब्रॉड हमारी कम्युनिटीज हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। मैंने उदाहरण दिया, 90 अफसरों का मैंने उदाहरण दिया। और पूरे देश में इस बात को एक्सेप्ट की गई कि हिंदुस्तान की सरकार को जो ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो चलाती नहीं है। तो ये इश्यूज उठाई जाएंगी। बट मेन चीज हम रखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश में अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के बीच में और नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है। अन्याय से नफरत बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, और बीजेपी आरएसएस का लक्ष्य एक्चुअली चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा, पूरा धन पकड़ाने का है। राहुल जी, क्या 22 तारीख के बाद आप जाएंगे राम मंदिर में दर्शन के लिए? तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into a election function. जो बीजेपी का जो मॉडल है, जो नफरत भरा हिंसा का मॉडल है, वो अन्याय का मॉडल भी है। उसमें
2-3 बड़े उद्योगपतियों को देश का पूरा धन मिल जाता है। जो ब्रॉड हमारी कम्युनिटीज हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। मैंने उदाहरण दिया, 90 अफसरों का मैंने उदाहरण दिया, और पूरे देश में इस बात को एक्सेप्ट की गई कि हिंदुस्तान की सरकार को जो ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो चलाती नहीं है। तो ये इश्यूज उठाई जाएंगी, बट मेन चीज हम रखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश में अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के बीच में और नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है। अन्याय से नफरत बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, और बीजेपी आरएसएस का लक्ष्य एक्चुअली चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा, पूरा धन पकड़ाने का है। राहुल जी, क्या 22 तारीख के बाद आप जाएंगे राम मंदिर में दर्शन के लिए? तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ यह कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into a election function. जो बीजेपी का जो मॉडल है, जो नफरत भरा हिंसा का मॉडल है, वो अन्याय का मॉडल भी है। उसमें 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देश का पूरा धन मिल जाता है। जो ब्रॉड हमारी कम्युनिटीज हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। मैंने उदाहरण दिया, 90 अफसरों का मैंने उदाहरण दिया, और पूरे देश में इस बात को एक्सेप्ट की गई कि हिंदुस्तान की सरकार को जो ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो चलाती नहीं है। तो ये इश्यूज उठाई जाएंगी, बट मेन चीज हम रखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश में अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के बीच में और नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है। अन्याय से नफरत बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, और बीजेपी आरएसएस का लक्ष्य एक्चुअली चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा, पूरा धन